occurrence of all these elements, we now go into the next important topic, and that is about the electronic configuration of these elements. Alright, and my dear friends, let me be very clear. We are going to consider the condensed electronic configuration, not the entire electronic configuration. Condensed का मतलब ये होता है दोस्तों, we are only going to consider the arrangement of the electrons in the outermost shell. ठीक है, तो ये तीनों ग्रुप का मैं आपको कंपैरेटिवली बता देता हूँ, ग्रुप 16, 17 as well as 18. So we begin with, सबसे पहले we start with group 16. Elements and the condensed electronic configuration. Okay, CEC. Okay, this is what it is. So this is our group 16. Then we go into group 17. उसमें भी ऐसे ही है, elements, and then we consider the CEC, and then we have group 18, elements and CEC. तो इस तरीके से पूरा कंपैरिजन करेंगे तो पूरा पिक्चर आपको एक साथ क्लियर हो जाएगा. ओके, दिस वे. So you will understand very well what is the changes in the electronic configuration, okay, in both the ways. क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ है वो दो तरीके से हुआ है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये दोनों तरीके से हम लोग फिर कंपैरिजन कर सकते हैं. ऑलराइट, सो टू बिगिन विद ग्रुप 16, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन. उसका एटॉमिक नंबर इज 8. फिर है सल्फर, उस एटॉमिक नंबर इज 16. सेलेनियम, एटॉमिक नंबर इज 34. टेलुरियम, एटॉमिक नंबर 52. and last is polonium, atomic number is 84. Alright, I'll tell you one very simple part, and that is ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, okay, there are s and the p orbitals involved. Sulfur and selenium में it is sp and d. Selenium tellurium में also it is sp and d, and tellurium polonium में it is sp, d and f. So the difference in the atomic numbers will become very clear to you all. Okay, s and p, you know very well. S orbital capacity is 2 electrons. P orbital the capacity is 6 electrons. So 2 plus 6 is 8. So 8 electrons difference, so 8 and 16. If you find out the difference, it's 8. There is a d orbital involved. D orbital maximum capacity 10 है, तो 2, 6 और 10 करेंगे तो कितना होगा? 18. ओके, तो 16 और 34 के बीच में कितना डिफरेंस है? 18 का डिफरेंस है. ओके, वंस अगेन सेलेनियम और टेलुरियम के बीच में sp_d है, तो वंस अगेन देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 18. तो 34 and 18 is 52. और उसके बाद f ऑर्बिटल आ जाता है. f ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी इज 14, सो 18 and 14 is 32. तो आप देख लीजिए 52 plus 32 gives you 84. Okay, so this is the way you can remember the atomic numbers rather than by hearting. Okay, अगर पहला एलिमेंट अगर आपको पता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो उस हिसाब से आपको बाकी के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा. ऑलराइट, नाउ उसी तरीके से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है अबाउट द condensed electronic configuration as well. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है condensed electronic configuration means we are talking about arrangement of electrons which are present only in the valence shell. Okay, तो उस हिसाब से we go into, जब हम लोग 8 की बात करते हैं, ऑक्सीजन 8 है, so 1s2, 2s2 and 2p4. लेकिन 1s2 वाला इग्नोर करना because that is not a valence shell. So इस हिसाब से we have what? 2s2 and 2p4. So 2 and 4 is 6. Okay, इधर 8 है, the difference of 2 you understood that is present in the first shell and that is not to be considered. We are only going to consider the outermost shell. ठीक है, अब दोस्तों ट्रिक ये है, याद रखिएगा कि इन अ ग्रुप जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, यू हैव बीन लर्निंग दिस फ्रॉम मेनी इयर्स, कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जब हम पीरियड की बात करेंगे वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट.
सो इन अ ग्रुप व्हेन वी गो एंड एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, याद रखिएगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल रिमेन्स द सेम। मतलब यहाँ पर आप देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, वो सेम रहेगा ओके पूरे एलिमेंट्स में इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, लेकिन नंबर ऑफ शेल एक एक से बढ़ते जाएगा। ओके इतना याद रखने का आपको। सो अकॉर्डिंगली नाउ ये नंबर ऑफ शेल इधर कितना था, 2 था, तो अभी ये कितना हो जाएगा 3, और मैंने जैसे बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स विल रिमेन द सेम, यानी ये क्या हो जाएगा 3s2 एंड 3p4। ओके उसके बाद ये मुझे आवाज आने लगी आपकी तरफ से, आप बोल रहे हो ये होगा 4s2 एंड 4p4, फिर ये होगा yes 5s2 एंड 5p4 and yes we have 6s2 and 6p4 okay, and therefore the general electronic configuration की अगर बात की जाए condensed of course, तो हम लोग लिखेंगे क्या ns2 and np4 okay, I hope you have understood this very well। ठीक है, अभी देखो दोस्तों ये कंपैरिजन के पीछे का एक मकसद ये भी है कि अगर आपको एक एलिमेंट पता चलता है ना, और इस तरीके से याद रखो कि नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बाय 1 ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। उसी तरीके से अभी जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वो फ्लिप करो। अब आप बोलोगे क्या फ्लिप करने का, तो वापस से बताता हूँ, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या किया था हम लोग ने, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बाय 1 बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स रिमेन्स द सेम। अभी फ्लिप करो, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स द सेम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 ओके एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके, ये याद रखेगा। तो देखो कैसे फटाफट आपको सिर्फ ऑक्सीजन याद रखने का है, और इधर से और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जाएंगे ओके। ये एक बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से we go into, we start with the elements now of group 17. So we have got fluorine, atomic number is 9, एक एक बढ़ाने का है। क्लोरीन तो इधर हो जाएगा 17 ओके, फिर आएगा ब्रोमीन 34 का 35 हो जाएगा ओके, फिर आएगा आयोडीन तो वो 52 था इधर, तो वो हो गया 53, एंड लास्ट इज एस्टेटाइन और उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 85। तो देखो आपको एटॉमिक नंबर भी इस तरीके से इजीली पता चल जाएगा ओके। ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, फिर उसका एक एक ऐड करो ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स द सेम, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो देखो ये 2s2 बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि s का मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2, बढ़ने की चांसेस किधर है इधर, बिकॉज p ऑर्बिटल में वैकेंसी है तो 2p5 हो गया। सिमिलरली इधर यस आप अभी फटाफट बोलने लगे, मुझे मालूम है 3s2 3p5, ये 4s2 4p5, ये 5s2 5p5 और ये है 6s2 and 6p5 बराबर है, क्लियर हो गया ये। सो यू गो आइदर दिस वे और यू गो दिस वे ओके, यू गेट द आंसर। अब आएंगे लास्ट इज ग्रुप नंबर इज 18 ओके, ये अलग ही ग्रुप है पूरे पीरियोडिक टेबल का ऑलराइट, ये आप जानते भी अच्छी तरीके से, नोबल गैसेस भी बोला जाता है, उसका रिएक्टिविटी इज वेरी वेरी लेस। उसमें एक एलिमेंट है एंड दैट इज हीलियम ओके, हीलियम 2 1s2 अलग है थोड़ा सा। एक्चुअली वो होना चाहिए s ब्लॉक एलिमेंट का, लेकिन बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एंड दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इट इन दिस ग्रुप ओके। नहीं तो कोई भी ऐसा बोलेगा आप सर p ब्लॉक पढ़ा रहे हो ओके, तो फिर आप ये s ब्लॉक का एलिमेंट कैसे लेके आए ओके, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है उस ब्लॉक का वो कहलाता है ओके, ये तो आपको मालूम है। तो हीलियम इज एन s ब्लॉक एलिमेंट, बट देन वी आर इनकॉर्पोरेटिंग इट इन 18 बिकॉज its properties are very much similar to those of the elements okay which are coming after helium alright, so that's why similarity जहाँ पे रहता है वहाँ पर उनको साथ में रखा जाता है। ये प्रिंसिपल है ऑफ पीरियोडिक टेबल, चाहे फिर वो मेंडलियस पीरियोडिक टेबल हो या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, जहाँ पर भी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर ओके दे विल बी टुगेदर, तो उस हिसाब से वो रखा है ओके। एनीवेज उसके बाद वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम सीक्वेंस ओके, एंड दैट इज नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। वैसे ही सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले भी बताया ओके, 9 का 10 होगा, 17 का इधर 18 होगा, 35 का इधर 36 होगा, 53 का 54, 85 का 86
Okay, electronic configuration, same way, 2s2, 2p5a, one more electron can be added because you know the p orbital maximum capacity is 6. Okay, next is, of course, yes, now you have started very fast. 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, 6s2, 6p6. Okay, general electronic configuration for group 17 is NH2 NNP5 और यहाँ पर हो जाएगा फिर NH2 NNP6. Okay, so that is what exactly it is. This is a trick, my dear friends. Only remember oxygen का electronic configuration. Okay, down the group if you go, increase the number of shell by 1. And you go towards the right of the periodic table, then you increase the number of electron by 1. The number of shell remains the same. बस तो ये एक बार मालूम पड़ा तो ये पूरा पता चल जाएगा और फिर ये पूरा पता चल जाएगा. यानी सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद रखना है. सिर्फ ये एक याद रखा तो आपको पूरा 15 जो है ये एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 5 5 5 15 पूरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ जाएगा. ओनली थिंग इज मैंने आपको हीलियम थोड़ा बता दिया कि वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऑफ कोर्स उसका जो बिहेवियर है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दीज एलिमेंट्स एंड देयरफॉर वी आर कंसीडरिंग इट ओवर हियर. ओके, सो आई गेस दिस पार्ट is entirely very clear to you all.